حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلی حضرت کے غلاموں سے ہمارے اختر نظامی صاحب ہمارے بریلویوں کے الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں. میرے ساتھ ابھی بات کر رہے تھے، تمہارا کال میں نے اٹھا لیا ہے. تو ہمارے مولانا تم سے بات کریں گے، وہ مجھ سے سینئر ہیں، اس لیے حضرت تم سے بات کریں گے. لو ان سے بات کرو حضرت سے. ہاں عمران دیوبندی جی، دیوبندی سے انکار کیوں کر رہے ہو آپ؟ میں کس چیز سے انکار کر رہا ہوں؟ میں کس چیز سے انکار کر رہا ہوں؟ دیوبندیت کو کیوں آپ کب توبہ کر لیے اس سے اور دوسرے کافی دھرم میں شامل ہو گئے؟ پھر بھی نہیں، دیوبندی کیا چیز ہے؟ کیا ہے دیوبند؟ کیا مطلب ہے دیوبند کا؟ آپ تو عمران بول رہے ہیں نا، اور کئی بار آپ بات کر چکے ہیں کہ آپ دیوبندی. آپ مجھے یہ بتائیے، دیکھیے اگر آپ مجھے میرے سوال کا مجھے جواب دیں تو میں سمجھوں واقعی آپ قابل عالم ہیں. آپ نہیں، آپ سوال کیجیے گا، لیکن آپ دیوبندیت سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ نہیں، میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیے دیوبندیت کیا چیز ہے؟ دیوبندی میں کہ آپ جو کہتے ہیں دیوبندی میں دیوبندی کے اندر کیا چیز برائی؟ دیوبندی وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے. دیوبندی وہ ہے جو اولیاء کرام کی ناموس میں کھلواڑ کرے. دیوبندی وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کو گھٹانا چاہتا ہے اور گھٹا بھی دیا. یہاں تک کہ اسماعیل دہلوی ان کے امام جو ہیں، جو دیوبندی اور وہابی کے متفقہ امام ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ مر کے مٹی میں مل گئے، میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملوں گا. بتائیے یہ ایسا عقیدہ رکھنے والے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھنے کے دعوے دار ہو، تو بتائیے ایسے گستاخی کرنے والے کے ساتھ رہیں گے؟ اچھا آپ یہ بتائیے، کیا آپ کے یہاں بریلی میں سارے ہیڑ پیدا ہوئے ہیں؟ کیا کوئی مرد پیدا نہیں ہوا ہے دیوبندی جائے گزن کاٹ دیتا ہے؟ گستاخی رسول ہے؟ جی، دیوبندی تو کھلے ہوئے گستاخی رسول ہے، ان کی کتابوں سے آیا ہے. بریلیوں میں سارے ہیڑے پیدا ہوئے ہیں کیا؟ نہ مرد پیدا کوئی نہیں ہوا جو جائے کہ دیوبندی گزن کاٹ دیتا کہ تمہیں اللہ رسول کی شان میں گستاخی کوئی ایمان والا تو اس بات کو برداشت نہیں کرنا؟ جی، یہاں تک ہم لوگ مردانہ پیدا ہوئے کہ اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ یہاں سے بھی اور حسام الحرمین کے شکل میں ٹھوک دیا گیا ہے. اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو بات کر رہا ہوں اس کا جواب دو. کیا آپ کے بریلیت میں کوئی اتنا بڑا مرد پیدا نہیں ہوا، سارے ہمارے ہیڑے پیدا ہوتے ہیں جو جا کے دیوبندی گزن نہیں کاٹ سکا؟ الحمدللہ دیوبندیوں کو چھکا چھڑانے کے لیے ہر سنی مرد پیدا ہوا ہے. ارے دیوبندیوں کی کسی نے گردن کاٹی بریلی میں نہیں کہ ہاں 10 20 150 دیوبندی صرف کیا کرتے ہیں، ان لوگ آتنکوادی ہے جو آتنک پھیلاتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو معلوم نہیں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب عمران دیوبندی صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرمائے ہیں کہ وہ کفر کا فتویٰ، مشرک ہونے کا فتویٰ دیں گے اور مسلمان کو قتل کریں گے. یہ حدیث آپ کو معلوم ہے؟ تو آپ نے واضح کر دیا کہ دیوبندی بریلی کو کاٹتے ہیں، پیٹتے ہیں. تو آپ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب داں نبی ہمارے خبر دے چکے ہیں. ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں بریلی نام کے بڑے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں. اسی بریلی اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے الحمدللہ ساری دنیا میں آپ کو ملیں گے اہل سنت و جماعت کا. ارے جو میں کہہ رہا ہوں اس کا جواب دو میرے بھائی. جو میں آپ سے سوال ہوں آپ کے اندر یہ تو کمی ہے کہ جو سوال کرتا ہے نہیں، سوال کیجیے، آپ کو فری دے رہے ہیں، سوال کیجیے. سنو، ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم بزرگ ہوئے، عالم ہیں بہت بڑے. ان سے ایک مسلمان نے سوال کیا کہ حضرت ایک بزرگ نے ایک وقت میں 10 جگہ جانا طے فرما لیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ان عالم نے جواب دیا اس مسلمان کو کہ کیوں نہیں ہو سکتا، کافی تھا ایک وقت میں 100 جگہ حاضر ہو گیا. کیا تعجب کو آدھے ایک وقت میں ایک بزرگ 10 جگہ حاضر ہو جائے؟ تو ان عالم کو نہ تو قرآن سے دلیل نہیں، نہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث دلیل نہیں، نہ صحابہ سے دلیل نہیں، نہ فقہ حناف سے کوئی دلیل نہیں. دلیل دی تو کچھ نہیں کریں گے.
हमारा तो यकीन नहीं है कि इसमें दलील के तौर पर नहीं, दलील के तौर पर आप तो यही गलतफहमी हो रही है कि मलफूजात में जो आला हजरत फरमाए हैं कि सबे सनाबिल वाले जो तहरीर किए हैं कृषि कन्हैया के बारे में, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? किसी के कौल को नकल करना। सुनो 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 सुनो, वो किसी काफिर थे, आपके पास क्या दलील है? वो तो काफिर था, वो वहाँ पर खुद लिखा हुआ है, खुद लिखा हुआ है काफिर था कह के। लेकिन सुनो पहले एक मिनट मेरी बात सुनो, उसके बाद जवाब देना। अगर आप पूरी दलील मौजूद एक स्टेज पे इकट्ठा कर लो और वो ये दलील जो साबित कर दे कि कृष्ण कन्हैया काफिर था, तो खुदा की कसम आप जो कहोगे मैं वो करने तैयार हूँ। आप कृष्ण कन्हैया को आप मुसलमान समझते हो? आप लोग तो नबी मानते हो ना जी? मैं आप मुझसे मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दो आप। जी जो वो का हिंदू थे, हिंदू को हम लोग काफिर मानते हैं, अलानिया वो कलमा नहीं पढ़ा। अरे सुन तो लो जी, अरे आप इसकी मुझे दलील दो ना यार, कोई दलील तो दो ना। जी जितने कुफार और मुशरिकीन हैं सब काफिर हैं, बस दलील की जरूरत नहीं है। अरे यार मुशरिकीन, अरे वो मुशरिकीन तो काफिर है बाखरम, ये तो कोई भी मुसलमान करेगा। अरे यार हिंदू के देवता जो शैतान है उसको क्यों आप मुसलमान बनाने में तुले हो यार? अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जो मैं देखो बात सुनो, अगर आप पढ़े लिखे तालीम याफ्ता आदमी है तो सबसे पहले आप ये बताइए, आप अपने उसूल बताइए कि मैं अपने उसूल बता रहा हूँ। मेरे उसूल है 4, कुरान, हदीस, इजमा, क़यास। यानी आप क्या अकाबिरीन को नहीं मानेंगे? एक मिनट सुनो, एक मिनट से मेरे उसूल 4 है, कुरान, हदीस, इजमा, क़यास। मैं सुन्नी हनफी हूँ, हनफी मसलक हूँ, इमाम मुक़ल्लिद हूँ। मैं आपको अपने कोई सवाल का जवाब दूंगा अपने अमल का, तो इन चारों से सबूत दूंगा कि मेरा अमल इससे सबूत आप क्या अकाबिरीन हुज्जत नहीं है मतलब के? एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो आप भाई, आप अपने उसूल बता दीजिए मुझे। मेरे उसूल तो 4 ही हैं और हमारे अकाबिरीन का जो माखज़ होंगे वो हुज्जत दलील बनती है। अरे मुझे बता दो आपके उसूल 4 क्या है, मेरा इल्म तो आ जाएगा ना। मेरे इल्म में आ जाएगा आपकी क्या उसूल है 4, ये तो बता दो आप। कुरान, हदीस, इजमा, क़यास। क़यास जानते हैं? क़यास में कौन कौन दाखिल होंगे आप समझ रहे हो? क़यास में उलमाए किराम के तहरीरात और अइम्माए किराम जिसको मानते हैं वो हुज्जत होंगे। बात मत करो, अरे लंबी बात मत करो, आप ये अपने 4 उसूल पर कायम रहेंगे बिल्कुल पक्का जी? तो नहीं हटोगे आप? इन 4 उसूल से पीछे तो नहीं हटोगे? जी नहीं, हम लोग कभी नहीं हटते हैं। और क़यास इजमा में उलमाए किराम सारे अकाबिरीन आते हैं और आप अकाबिरीन से इनकार कर रहे हो ना। अरे भाई आप अगली बात मत कहिए, जो पूछूं उसका अगली बात अगर आप एक मिनट, अरे भाई मेरे सुनो, आपका जो भी अमल करोगे इन 4 अच्छा आप किसकी मुक़ल्लिद है पहले आगे बता दीजिएगा। हैं? आप किसके मुक़ल्लिद है? अल्हम्दुलिल्लाह हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे आप बताइए इमाम भाई साहब कि मैं जिस चीज का आपका सवाल दूँ मुझे आप इन 4 उसूल से जवाब देंगे, इन 4 उसूल के खिलाफ जवाब दोगे? 4 ही उसूल से जवाब दूंगा। जवाब दोगे? पक्की बात हो गई? जी। आप ये शराइत तोड़ोगे तो नहीं? अरे यार बको ना, क्या बकना है, जल्दी बेकार बकवास कर रहे हो। आप भागने लग रहे हो तो आप अरे अभी तो मैं अभी हो, अब आप मैं आपसे ये सवाल करूँगा, आप मुझे इन 4 उसूल से जवाब दे दिया किसी कभी काफिर थे, मुझे मैं आपके अल्लाह की कसम आपका गुलाम बन जाऊंगा, कसम खा रहा हूँ। मेरा गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनो यार, है ना? भाई सुन तो लो यार, अरे सुनो देखो बात किशन भैया काफिर था दीजिएगा और एक वक्त में 100 जगह हाजिर बीच में मेरी आवाज नहीं जा रही? आ रही वो नहीं सुन रहा है। हजरत आप मेरी बात सुनिए। आपका गुलाम बनने तैयार हूँ, मगर आप जी जवाब दो ना। ये सुबह मेरे से इस टॉपिक पे बात हो चुका है, यूट्यूब पे आ चुकी है वो मुनाज़रा, सुबह इससे बात हो चुकी है इसी टॉपिक पे। मैंने इसको जवाब दे दिया। जब कोई काफिर सवाल करे, खुदा की कसम अल्लाह के रसूल भी खा रहा हूँ, आप तुम क़यामत तक जवाब नहीं दे। इमरान देवबंदी जी,
इमरान देवबंदी जी गौर से सुनिएगा, हवाला नोट कीजिए, आपका हवाला दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बगौर सुनिए। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत दे दे। आप हाजिर व नाजिर होना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह करके और मिसाल पे आप एतराज किए हो। आप मिसाल पर एतराज करते हो तो शीश महल में ताहिर गयावी साहब लिख छोड़े हैं, मिसालों पे एतराज नहीं होता, ये उसूल ख्याल रखिए। अब इमदादुस सुलूक में जिसे हाजिर व नाजिर को आप देवबंदी हजरात या वहाबी हजरात ये हाजिर व नाजिर मानना शिर्क कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शिर्क मानते हो। लेकिन देवबंदियों फिरका के उलमा ने तस्लीम किया है पीर रूहानी तौर पर हर जगह मौजूद होता है। इमदादुस सुलूक सफा नंबर 67, ये अशरफ अली थानवी का अकीदा। तो बताइए ये आपके उसूल से अशरफ अली थानवी वासिले जहन्नम हुआ, नंबर 1। दूसरा हवाला टांडवी सरकार गालियों का सरकार है, ये बहुत तकरीबन आला हजरत को 367 गालियां शहाबुस साकिब में दे चुका है। सफा नंबर 197 में लिखते हैं आपको जुमला कमालात के लिए अहले आलम के वास्ते मानते हैं, यानी जुमला कमालात खलाइक इल्मी हो या अमली नबूवत हो या रिसालत सिद्दीकियत हो या शहादत सखावत हो या शुजात इल्म हो या मरूबत फुतुहात हो या बावकार वगैरह वगैरह, सब साथ अव्वलन बिजात आपकी जात अव्वलन सिफात जनाब बारी जनाब से मुत्तसिफ हो गई है और आपके जरिए से जुमला कायनात का को फैज पहुंचता है। साहबुस साकी बोला भी हाजिर व नाजिर मान करके वासिले जहन्नम हो गया। तीसरा हवाला इश्के रसूल और उलमाए देवबंद सफा नंबर 153 में लिखी हुई इस इबारत से साबित हुआ कि हर मखलूक का कमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साबित है। ऐसे ही इस बात का भी इकरार किया है कि एक उम्मती के लिए ज़ाते अक़दस से इक्तिसाब फैज हर वक्त मुमकिन है। अब आपके कासिमुल उलूम साहब कासिम नानतवी कासिमुल उलूम वल खैरात बानिए देवबंद, देवबंदियों को जन्म करम देने वाला, ये अकीदा भी एक दफा मुलाहिजा कीजिए। ये लिखते हैं मैं मुतअद्दिद मौके पर मुशाहिदा करने वालों से वफात के बाद देखा कि मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह जज्बे उनसूरी के साथ मेरे पास तशरीफ लाए थे दारुल उलूम के झगड़ा सुलझाने के लिए। तो आप लोग अपने अकाबिरीन को हाजिर व नाजिर मानते हो। अशरफ अली थानवी हाजिर व नाजिर मान रहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। साहबुस ताकिम में गालियों का सरकार हुसैन अहमद टांडा, ये इन्होंने हाजिर व नाजिर माना है। इश्के रसूल और उलमाए देवबंद लिखने वाला इन्होंने हाजिर व नाजिर माना है। तो जनाब कितने के इनकार करके आप अपने अकाबिरीन को लात जूते मारोगे। अशरफ अली थानवी मजजूब के बारे में लिखता है आपने बैक वक्त 30 शहरों में जुमा की नमाज पढ़ाई। जमाले औलिया में सफा नंबर 223 में लिखा है। बताइए ये बुजुर्ग के लिए हाजिर व नाजिर मान रहा है, कोई दलील नहीं। इमदादुल मुश्ताक सफा नंबर 98 में थानवी ने अब्दाल के बारे में लिखा एक वक्त में कई शहरों में होता है वो। तो बताइए आप अगर किसी पर एतराज करोगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर तो आपके अकाबिरीन कोई बचते ही नहीं। मेरे पास हवाला कसीर हैं। अगर शब्बीर अहमद उस्मानी देवबंदी लिखता है तफसीर उस्मानी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों के बारे में पूरे वाकिफ हैं, उनकी सदाकत अदालत पर गवाह होंगे और गवाह वही हैं जो हाजिर व नाजिर हैं। लीजिए आपके शब्बीर अहमद उस्मानी जहन्नम वासिल हो गया। तस्कीनुल इत्का में महमूद आलम सफदर ने जिसको तस्लीम किया है चोटी के मौलवी कहते हो अंबिया असली जिस्म अक़दस के साथ कब्र अनवर से बाहर तशरीफ ले जा सकते हैं, लिखे हैं ये भी हाजिर व नाजिर मान रहे हैं। सरफराज सफदर गखड़वी लिखता है इस इबारत से पेशे नजर आप सिर्फ अपने उम्मत के औलिया की जनाजों में शिरकत करते हैं। ये तफरीहुल खवातीर सफा नंबर 111 में लिखा है। तफरीहुल खवातीर सफा नंबर 229 में मजीद लिखा अगरचे मलिकुल मौत के सामने जमीन एक रिकाबी की तरह होती है और वो जहां चाहे किसी की रूह कब्ज कर लें। बताइए ये इजराइल अलैहिस्सलाम को हाजिर व नाजिर माना, तो बताइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माना, इजराइल को भी माना और बुजुर्ग मजदूब को भी माना। तो इस तरह से आपके अकाबिरीन जिसको शिर्क कर रहे हैं गैरुल्लाह के लिए हाजिर व नाजिर मान करके मुश्रिक हुए या ना जनाब।
तो ऐसे अकीदे रख करके आप ताइब क्यों नहीं हो जाते अहले सुन्नत व जमात में? मैं आपको दावत दूंगा, क्या ख्याल है जनाब आपकी? आपने अपनी बात कह ली पूरी? जी जी, और भी बता दूंगा, शैतान को भी हाजिर व नाजिर माने हो आप लोग, है ना? बात पूरी मैंने सुना, आपकी बात सुनी पूरी? जी जी, आपको बता रहे हैं, आपको आप लोग शैतान को भी हाजिर व नाजिर माने हो यार। अब सुनो, आपने जो बात कही मैंने खामोश के साथ बात। जी जी, तो आप कह रहे हो कि एक शैतान के लिए जो हिंदू देवता को हाजिर व नाजिर मानते हैं जनाब इमरान देवबंदी साहब, एक मिनट, हाजिर व नाजिर मानते हैं, तो आपके उलमा, एक मिनट, एक दलील बराहीने कातिया सफा नंबर 55 में मलिकुल मौत और शैतान को जो उसते इल्म दी उसका हर हाल मुशाहिदा और नुसूस कतिया सरीह दलाइल से मालूम हुआ। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अख्तर निजामी है। अख्तर निजामी? जी 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 भाई अख्तर साहब, एक मिनट, आपकी जितनी भी आपने बात की मैंने खामोशी सारी बात सुनी। जी जी, आप बताएं इसको जो शिर्क कह रहे हो। जी सुनाइए। मेरे लिए क्या वो खाना काबा का इमाम हो या सारे देवबंदी हो, सारे मज़ाहिबी हो, सारे रबी हो, मेरे लिए कोई अमल में उज्जत नहीं है। इसको काफिर क्या डिक्लेयर कर दें? अशरफ अली थानवी काफिर था कह दें? अगली बात आप क्यों बोल रहे हैं? आप मेरी बात सुनो ना। नहीं, आप जब जिसको शिर्क कहते हो ना, तो कासिम नानतवी गिरफ्त में आया और अशरफ अली थानवी गिरफ्त में आया, सरफराज गखड़वी गिरफ्त में आया, तो इन शब्बीर अहमद उस्मानी गिरफ्त में आया, खलील अहमद अम्बेडवी शैतान को हाजिर व नाजिर मान करके गिरफ्त में आया, तो इन सबको कहिए कि काफिर हैं कह करके। मैं अकाबिरीन का, आपके मोतमद जो अकाबिरीन जो जन्म कर्म हुआ है देवबंदी का ना, अरे भाई आप खामोशी उसके दलील मैं दे दिया आपको। अरे भाई आप खामोशी सुनोगे नहीं? जी बताएं जिसको। जैसे मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी खामोश, लेकिन आप खामोश सुनिए, आप सुनाइए, उसके बाद मुझे आप जवाब देंगे। देखिए मैंने ये कहा कि मेरे लिए कोई भी देवबंदी का मौलवी बड़े से बड़ा शेखुल हदीस हो या खाना काबा का इमाम हो, चाहे नबी हो या शाहिद हो, कहीं से बड़े बड़ा मुहद्दिस हो, मेरे लिए अमल में उज्जत नहीं है बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इमरान देवबंदी जी, आप हदीसे रसूल के खिलाफ ना बात कर रहे हो, आपकी गिरफ्त करूंगा मैं, आपकी गिरफ्त करूंगा। आपने कहा मुहद्दिसीन या कोई भी आदमी हमारे लिए काबिल हुज्जत नहीं है। बात करो, अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप आलिम हो तो इनकी बात करो भाई ना, आप हदीसे रसूल के खिलाफ ना बात कर रहे हो, और मैं दलील दिया जिसको इसको पहले इसको मुशरिक ऐलान कर लें। पहले मेरी बात सुन लो, खामोश रह गया, तुम क्यों बकवास कर रहा हो? इसको पहले मुशरिक ऐलान कर लें, थानवी मुशरिक था। बात सुनो पहले यार, तुम मेरी बात क्यों नहीं, आप ऐलान करो इसको पहले। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरे लिए कोई भी आलिम अमल में हुज्जत नहीं है। हुज्जत नहीं है ना? अरे मेरी बात सुनो भाई, तुम बात क्यों नहीं सुनते यार? नहीं, हुज्जत नहीं है तो इसको कहिए कि ये मुशरिक है ना, इबारत लिख करके मुशरिक हुए हैं। अरे तुम बात क्यों नहीं सुनते भाई? पूरी बात सुनो ना पहले भाई। मैं जी बार जैसे मैंने आपकी खामोशी से बात सुनी, आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरी भी खामोशी से बात सुनो। बताइए। आप पहले मेरी पूरी बात सुनो, फिर मैं आपको बोला मैं बोलो। मैंने आपसे अपना अकीदा बताया, मेरे लिए कोई भी आलिम हुज्जत नहीं, मेरे लिए हुज्जत है कुरान, हदीस, इज्मा, कयास। मैंने आपसे, आपने भी ये कहा कि मेरे लिए इज्मा और कयास कौन करेंगे जनाब? एक मिनट सुन चलो। कयास कौन करेंगे? अरे एक मिनट सुन चलो। नहीं, कयास कौन करेंगे वो बताएं। क्या सुन चलो यार, पहले बात सुन चलो। नहीं सुना, वो कयास कौन करेंगे? अरे बात सुन लो पहले, बात न करना ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे कुरान, आपके आला हज़रत ने ना तो कुरान से दलील ली, ना दलीली हदीस से, ना दलीली सहाबा से। आपके आला हज़रत दलीली कृष्ण करिए से। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तो उसका जवाब दे दिया, भाई सुन चलो। अरे बात सुनो पहले, खामोशी के साथ, उसके बाद बोलना ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा कराऊंगा, मैं नहीं करूँगा, आप बोलना मत। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके आला हज़रत ने कृष्ण करिए एक तो काफी लिखा, और दूसरी बात उसका एक वक्त में 100 जगह हाजिर हो के, एक वक्त में 100 जगह हाजिर हो गया, क्यों लिखा। अब मुझे आप अपने तमाम उलमा बरेलियों से, या आप अगर आप आलिम हो, आप कियास को मानते हो? सुनो, अरे पूरी बात सुनो, पहले पूरी
पूरी बात सुनो उसके बाद कहना मुझे। हाँ बताइए। अब आप मुझे इसकी दलील दे दो कि कृष्ण कन्हैया काफिर था कुरान हदीस की रोशनी में, इस्लाम की रोशनी में। आप हाजिर और नाजिर माने हैं और कृष्ण कन्हैया को आप मुसलमान समझते हो? मैं किसी को मैं सारी दुनिया हाजिर मानू न मानू, इससे क्या मतलब आपका? नहीं मतलब नहीं है, आप बात कर रहे हो, आपके अकीदा जाने बगैर मैं कैसे जवाब दूंगा? आप कृष्ण कन्हैया को जिसके बारे में आपको मोहब्बत का इजहार कर रहे हो वो यानी काफिर था, दलील मांग रहे हो, तो मैं आपसे पूछूंगा ना जनाब, आप मुसलमान कैसे समझते हो? इंसान की जून में लगे बात करो, अगर तुम या तो मैं जाहिल हूँ, नहीं अगर आलिम हो तो इल्म की रोशनी में बात करो। जिहालत की जैसा आप ना बात कर रहे हो। अगर तुम मुसलमान हो, हनफी हो, तुम बीच में टांग क्यों आ रहे हो? मेरी बात पूरी नहीं हो रही, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? पूरी जल्दी करो, बकर करते हो ना, इल्मी बात करो यार। खामोश हो। आप मुझे कुरान हदीस की रोशनी में कयास से आप मुझे साबित कर दो कि कृष्ण कन्हैया एक मसले 100 जगह हाजिर हो गया, ये दलील है कुरान हदीस में की बात हो। जी हमारे अकाबिरीन में से जो मिसाल सुनो, अरे तुम साबित तो करो। साबित कर दे रहा हूँ, सुनो पहले सुनो। हाँ सुनो। हाजिर और नाजिर आप किसी के लिए मानते हो, वो अकीदा मुशरिक है आपके लिए नजदीक। तो मैं दलील पेश किया आपके अकाबिरीन का, कई अकाबिरीन का पेश किया, आपने उसको बगौर सुना, लेकिन आप ये मुशरिक होने का ऐलान नहीं किया। दूसरी बात, बीच में खलल ना करें, आपका सवाल पूरा हो गया, जवाब सुने। हमारे नजदीक हुज्जत क़ियास भी है। सुनो यार, अलग अलग अकीदे नहीं, देवबंदर में और वहाबियों में मुतजाद अकायद भरमार हैं, जिसकी वजह से काफिर हैं, दायरे इस्लाम से खारिज हैं। हमारे नजदीक क़ियास भी हुज्जत है। हमारे अकाबिरीन का हलो सुनो, बीच में खलल मत करो शैतान के जैसा। हमारे नजदीक क़ियास भी हुज्जत है, तूने इकरार किया है। और हमारे अकाबिरीन का जो मिसाल दिए जाते हैं सबे सनाबिल का, जो मलफूजात में एक झापड़ मारूंगा अभी। इमरान देवबंदी खामोश रहा, जहालत की चीज मुरब्बा बीच में मत बन। अशरफ अली थानवी वाकई कहा है, बीच में खामोश रहो, बकर मत कर। रही बात, तुम खामोश रहो यार, सुनोगे या नहीं? जहालत की हकीकत में तुम मुजाहिरा कर रहे हो। इमरान देवबंदी साहब तुम्हारा कौन बोल रहा है? गौर से सुनो, तुमको पहले ही जवाब दे दिया। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन साहब ने पहले ही ऐलान कर दिया तुम्हारे नजदीक, उसको तुम सुने नहीं। सुनेगे या नहीं? हमारे लिए तूने कहा है क़ियास से हम दलील मानते हैं। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने सबअ सनाबिल अपने अकाबिरीन का वो हवाला पेश किए हैं, मिसाल के तौर पर बताएं। लेकिन देवबंदी बराहीने कातिया में शैतान को हाजिर व नाजिर माना है। और दूसरी बात, बराअतुल अबरार में सफ़ा नंबर 57 में कहरे आसमानी पर फिरक़े रज़ाख़ानी, बराअतुल अबरार 57 में मौलाना कारी अब्दुल रऊफ खान जक्कनपुरी देवबंदर ये लिखा है। सफ़ा नंबर 57 में हजरत मौलाना खलील अहमद साहब ने फरमाया, मलिकुल मौत और शैतान मरदूद का हर जगह हाजिर व नाजिर होना नसे कती से साबित है। नसे कती देवबंदर बताएंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाजिर व नाजिर को शिर्क करार दे रहा है इमरान देवबंदर। तो इसी तरह से इसका जवाब दें कि कौन सी नसे कती उस मरदूद के लिए मिल गया, शैतान मरदूद के लिए वो हाजिर व नाजिर हर जगह मान रहे हैं। और महफिल मिलाद में या हम माने कि जनाबे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं मिलाद शरीफ में, या तशरीफ ला सकते हैं अल्लाह की इज़्न से। और हाजिर और नाजिर का मतलब हम ये अकीदा रखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर मदीनतुल मुनव्वरा में कब्र अतहर मुबारक शरीफ में मौजूद है, और वहां से देख रहे हैं, नजारा कर रहे हैं। और शाहिदों मुबशरा कुरान की आयत शाहिद है, जिसका इनकार देवबंदी करता है। लेकिन इनके नजदीक जो दो किताबों में
लिखी हुई है क़ारे आसमा बरातुल अबरार में और बराहीन कातिया 55 में कि शैतान हर जगह हाजिर व नाजिर है, नसे कती से साबित है। तो देवबंदी इमरान जी, वो नसे कती कुरान की कौन सी आयत है शैतान के लिए हाजिर व नाजिर मानते हो? जवाब दो इमरान देवबंदी, या ऐसे गलत देवबंदी से तौबा करो और इसको काफिर डिक्लेयर करो खलील अहमद अम्बेडवी को और कारी अब्दुल रऊफ खान जक्कनपुरी को, ये देवबंदर को। क्या ख्याल है जनाब इमरान देवबंदी जी? मैंने आपसे, मेरा सवाल वही है, जब तक मेरे सवाल का जवाब आपका मैं सवाल का जवाब दे दिया। कयास जो पेश करते हैं ना, आप खुद तस्लीम किए हो, कयास पेश किए जाते हैं और कयास से साबित किए जाते हैं। हालांकि वहां पर नहीं दलील के तौर पर, हुज्जत के तौर पर पेश किए हैं कि हुज्जत ये बन गई क्या करके, बल्कि मिसाल से समझाया जाता है। लेकिन तुम लोगों की मिसाल अगर दूं, मिसाल देवबंदियों का मिसाल खुतबातुर रशीद में खुद लिखा हुआ है, आपकी मिसाल यानी सारे देवबंदियों की मिसाल, दूर से गधे आ रहे थे तो रेंक रहा था, 2 गाड़ी गधे वाला तो रेंक रहा था। तो हम लोगों की मिसाल, हम लोगों का वो क्यों रेंक रहा है देख करके जान रहे हो? इसलिए कि हम लोग को गधे साबित कर रहा है, हम लोग को गधा समझ रहा है। मैं सारे देवबंदी को गधा समझूं? और आपके आदाबुल अखलाक में भी लिखी हुई ये बात लिखी हुई है, हम लोगों की मिसाल यानी देवबंदियों की मिसाल उस बंदर की सी है जो एक अदरक की गिरह मिल गई, अपन सारी का दुकान खोल लिए। आपको इसी तरह मलफूजात की एक इबारत मिल गया और उसमें आप मुनाजिर बनने की ख्वाहिश से उछल पड़े, नहीं जान रहे कि उलमा अहले सुन्नत चीर फाड़ करके रख देंगे, आपकी जिल्लत तो रुसवाई होगी। जब इतने अकाबिरीन आपके मुश्रिक ठहरे आपके अकीदे के मुताबिक, तो देवबंदियत से तौबा करेंगे या नहीं? देवबंदियों से तौबा करेंगे या नहीं इमरान देवबंदी जी? मैं देवबंदी तौबा करूंगा, मेरे जब तक तौबा कर लीजिए, तौबा कर लीजिए। पहले आपके अकाबिरीन सड़े काफिर साबित हो गए। पहले मेरे सवाल का जवाब जी, कृष्ण कन्हैया काफिर था, इसकी दलील दो मुझे आप। कृष्ण कन्हैया जितने भी हमारे अकाबिरीन हैं लिख दिए, तो हमको जरूरी है क्यास उलमा के क्यास जब आ जाते हैं और दलील के तौर पर पेश कर दिए जाते हैं तो हमारे अकाबिरीन का माखज होते हैं, वो दलील बनते हैं। जैसा कि देवबंदी का उसूल आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ में आपके अकाबिरीन लिखते हैं, उसूल बताते हैं, अकाबिरीन के माखज दलील होते हैं, समझे? तो आपके अकाबिरीन के माखज अल्लाह का रसूल आप हर जगह हाजिर नाजिर मानते हो, पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाजिर व नाजिर, हमारा अकीदा में बता दिया हाजिर व नाजिर का, जिसमें 10 वही है, लेकिन वहीं से देख रहे हैं और नाजिर भी हैं। और जी अरे सुन दो, अरे सुनो, मैं आपकी मेरी जो गुफ्तगू हो रही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त हाजिर है, हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं? हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत, हाजिर है नहीं? आप हाजिर व नाजिर नहीं मानते हो? अरे सुनो, देखो बात सुनो, जैसे मैं आपकी बात सुनी, मेरी बात सुनो। अल्लाह के रसूल को आप हाजिर नाजिर मानते हैं, आपकी मेरी गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर है, सुन रहे हैं हमारी गुफ्तगू? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा अकीदा पहले सुन लें, हमारा अकीदा पहले सुन लें जनाब, हमारा अकीदा पहले सुन लें कि हाजिर व नाजिर का मतलब जाने रसूल। अरे हमारा अकीदा जब तक नहीं जानोगे तब तक एतराज करके फालतू ना होगा यार आपका। हाँ तुम अपने कहने मेरी सुनो ना। जी अल्लाह के रसूल को आप हाजिर नाजिर मानते हैं, हर जगह हमारी तुम्हारी गुफ्तगू से आप सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर में हाजिर है, इस वक्त हाजिर नाजिर है? जी, वो नाजिर वहां से हैं और हाजिर व नाजिर इसलिए मानते हैं हम कि उनके अब हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाए हैं कि पूरी दुनिया को मेरी मुट्ठी के मिस्ल कर दिया, मैं हथेली को जिसे देख रहा हूँ पूरी दुनिया मेरे निगाहों के पेशे नजर। हदीस है, आप लोग इस हदीस का इनकार करते हो। और अच्छा सुनो यार, हाँ, ये अल्लाह के रसूल सुनिए, खर आदत की है, ये आदत में शुमार थी, खर के आदत में जब हदीस आपको दलील मिल गई, आप हदीस दलील को आप तावीलात कर रहे हो यार। हदीस में तावीलात क्यों कर रहे हो इधर उधर अपने अकायद, गलत अकायद पे? तुम देखो, तुमने बात सही गई, तुमने बात बिल्कुल सही गई, मैं तुम्हारी बात नहीं कहा। अब तुम ये बता दो, जब घर के आदत में थी तो ये मोतज़ा हो गया हदीस का?
ये तुम्हें मौजूदा अभी भी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात तो बुलंद बाला हैं और पहले से ज्यादा बुलंद बाला हैं, और ये कुरान शाहिद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात बुलंद होते रहेंगे। अब सूरह दुहा पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। फायदे में रहोगे, कम बोलो फायदे में रहोगे। आपने अभी एक बात कही कि घर के आदत, आप अब मुझे ईमानदारी से बता दो, इस हदीस को पर मेरा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जब ये घर के आदत थी तो अभी मौजूदा में शुमार हो गई, फिर ये आदत थी नहीं थी, तब जब ये आदत नहीं थी तो भैया हाँ हदीस पढ़े, आदत में नहीं थी इसलिए हदीस पढ़े जनाब अपने। अरे सुनो हाँ पढ़िए, हदीस पढ़े, अरे सुन तो लो हदीस पढ़े तुमने, अरे सुन तो लो, मैं क्या हदीस का इनकार नहीं कर रहा हूँ। हाँ हदीस पढ़े आप, घर के आदत से वो बाहर हैं। हद करेगी, अरे मेरे इस हदीस पर मेरा ईमान है। ईमान है ना तो आप तौबा कर लें। मेरा, अरे यार हद तुम्हारी, तुम आलिम हो नहीं हो, अगर आलिम हो तो आलिम से बात करो। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम्हारा आलिम तो आलिम से बात करो, तुम्हारी बात सही है, मैं तुम्हारी बात का इनकार नहीं कर रहा हूँ भाई। अब आप मुझे निजामी साहब बंद कर दीजिए। जैसे ये सुबह भी दलील हुआ, कोई दलील नहीं दिया, तौबा भी नहीं किया और अपने अकाबिरीन को काफिर साबित करते हुए। जी एक जलालुद्दीन साहब, इसका जवाब एक मुख्तसर अंदाज में दे देता हूँ। इन्होंने अल-मलफूजात में, इमरान देवबंदी अल-मलफूजात में एतराज करते हुए कृष्ण कन्हैया कई सौ जगह मौजूद होने से मुतालिक बनुआने अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का फतवा अहकाम शरीयत जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर अल्लाह की अता से जहाँ चाहे जब चाहे आज जा सकते हैं जिस्म के साथ, वो भी है, लेकिन रूहानियत तौर पर सब जगह उनके मुशाहिदा हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं और उम्मत से वाकिफ हैं। जी वाकिफ हैं। गवाह बना करके अल्लाह के रसूल को भेजा। ये हमारा अकीदा है। अरे भाई आप खामोश हो, एक बोलो ना, एक बोलो अल्लाह के रसूल। हाँ ये बोल दिया और सारी बात हो गई। और जो है बिदअती और गुमराह काफिर साबित हो चुके हो और तुम्हारी कुफरिया तौबा करो। हाँ तुम्हारी जो गुस्ताखाना तुम्हारे ये जिहालत दिखाया है ना, तुम्हें इबादत की रोशनी में वो लोग काफिर मुर्तद हैं। ये जिहालत दिखाया है। हाजिर और नाजिर का अकीदा शिरकिया है। अगर किसी मुस्लिम को मानना शिरक है, तुम नबी के लिए मानने को शिरक बता रहे हो और तुम्हारे अकाबिरीन शैतान के लिए मान रहा है। शैतान के लिए माज़अल्लाह माना है, नशे कती से माना है। मैं सारे देवबंदी से मुतालबा करता हूँ कि वो नशे कती पढ़ दो। अल्लाह का बराबर है। शैतान को अल्लाह मानता है ये लोग। जब नबी को मानना शिरक है तो शैतान को मानना शिरक नहीं। मतलब ये है कि शैतान अल्लाह की जात और सिफात में शरीक है। अरे जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दो। देखिए मैं एक इसका जवाब दे देता हूँ मुख्तसर अंदाज पर। वाकया ये है, तौबा करो देवबंदी अच्छे, देवबंदी काफिर नहीं। देवबंदी को क्यों लात नहीं मारता है जबकि इतना उन लोगों के जलील और रुसवा होता है। उसकी धुलाई हो चुकी है। हाँ जी, उसकी धुलाई हो चुकी है। अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। अगर हिदायत नसीब में नहीं है बर्बाद करें और बात खत्म कर दीजिए हजरत। जी मैं हाजिर और नाजिर पर हदीस का दलील देता, लेकिन ये इनके अकाबिरीन का इनकार करता है। ये अपने अकाबिरीन को कुफ्र में ढकेल दिया है। अपने अकाबिरीन को भी मार चुका है। देखिए इमरान देवबंदी की आज जिल्लत और रुसवाई और ठोकाई सारी यूट्यूब वाले देखेंगे, है ना। ठीक है लात मारिए इसको, बेकार बकवास कर रहा है, बदजबानी में आ गया। बदजबानी मत करो देवबंदर।